Good morning, students. Today we have to complete our exercises. Today we have to complete our exercises. Our first exercise is select the correct option. It means MCQs. Our first exercise is MCQs. We have to choose one of the correct answer from four options. Okay. The first is a tall plant. A tall plant has a thick, hard and brown stem. एक ऐसा tall plant जिसका क्या है, thick, hard and brown stem होता है. Stem होता है. It is A. And the answer is tree. Answer is tree. Question number 2. Question number 2. The medium-sized plants with the hard, thin and brown stem. Medium-sized plants are shrubs. It is shrub. Third, the thorns of cactus plants are modified. The thorns of cactus plants are modified. जो कैक्टस के जो कांटे होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं कैक्टस में. किस रूप में? लीव्स के फॉर्म में. ओके. देन इन विच प्लांट आर स्टेम्स मॉडिफाइड टू प्रिपेयर फूड. फूड प्रिपेयर करने के लिए किस में मॉडिफाइड होते हैं स्टेम? इट इज पोटैटो. इट इज पोटैटो. Potato is not the root or leaf, it is a stem. Then the outermost part of the flower is outermost, that is the green part that we have to hold. It is sepals. It is sepal. The dust-like particles that anther contains are called, dust-like particles are in anther are called pollen grains. Are called pollen grains. Okay, write down all these. Okay, now we have to complete two true and false. We have to complete true and false for question number 2. The coriander plant is a shrub. Coriander plant is not the shrub, it is a herb. So it is coriander, it is the false sentence. Then B is root conducts water to the aerial parts of the plant. Yes, with the help of an conductive tissue, with the help of a conductive tissue, that is xylem, the root absorbs the water from the soil and the dissolved minerals are also present in the water also. Then the water is conducted to the aerial parts by the roots. It is true. Grass leaves have reticulate venation. Grass leaves have reticulate venation. No, it has a parallel venation. It is a false sentence. Next, the stem anchors a plant firmly to the soil. No, stem कभी भी soil के अंदर नहीं जाता है. तो the roots will anchor the roots of the plant will anchor the plant firmly into the soil. Soil में अच्छे तरीके से जकड़न बना लेता है कौन? Roots. तो it is a false sentence also. The sepal is the female reproductive part of plants, not the sepal. Pistil is the female reproductive part of the flower. So it is also false sentence. 2 questions we have done. First is MCQs and second one is true false. Write down the answers clearly. Now we have to complete match the followings. We have to complete match the followings.
Question number 3. I am writing here only and only answers in front of the column. जो लाइन है उसके सामने ही मैं उसका क्या देख रहा हूं, किससे वो मैच करेगा. ओके, तो रूट्स always conduct the water and nutrients to the plant. That is first. Roots will goes to second. Conduct water and nutrients. Water and nutrients to the plant. Okay, then after leaves, leaves क्या करती है? Leaves are the food factories of the plant. Food factories of the plant. This is fourth. Food factories of the plant. Food factories of the plant. Flowers. Flower क्या है? Flower क्या है? Flower is the reproductive part of the plant. It is the last option, sixth. Reproductive part of plant. ठीक है. डी, स्पाइंस. Spines on the cactus. Spines are the modified leaves that reduces the loss of water. That reduces the loss of water. It is reduce loss of water. E, tendrils. Tendrils is what? मैंने आपको चैप्टर में बताया होगा कि some of the climbers have the spring-like structure. That is called the tendrils. Tendrils क्या करती है? Provide support to the climbers. Okay, provide support to the climbers. Provide support to the climbers. Then last one is sepals. Last one is sepals. Sepals is what? Sepal क्या करती है? Protect the flower in the bud stage. Flower को bud stage के अंदर क्या करती है? Protect करती है. जब वो पूरी तरह से खिलता नहीं है, कली रहती है छोटी सी, उस टाइम पे ये उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करते हैं. कौन? सेपल्स. सेपल्स इज व्हाट? द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर. फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट होता है डाउन साइड, जिसको हम लोग होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेपल्स. और अंदर जो ग्रीन पार्ट होता है दैट इज पेटल्स. ओके, नाउ इट इज योर मैच द फॉलोइंग्स. दीज आर द क्वेश्चंस एंड द राइट आंसर्स are in front of the question. Okay, now we have to choose one word answers. We have to complete one word answers. Some of the definitions are here. Then we have to say that which type of term is coming here for this definition. किसकी definition ये है? तो we have to write that word. क्या करना है? मुझे वो word लिखना है जिसकी डेफिनेशन यहां पर है. Okay, now one word, the arrangement of the veins on the leaf. Question number 4. Write one word. One word answer.
द ए इज द अरेंजमेंट ऑफ द विंग्स ऑफ द लीव्स। लीव्स के ऊपर जो अरेंजमेंट होता है किसका, विंग्स का। विंग्स जो पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखती है पत्ती के अंदर या लीव्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड द विंग्स। और उन विंग्स का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द वेनेशन। इट इज कॉल्ड वेनेशन। फर्स्ट आंसर इज वेनेशन। सेकेंड वन इज द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑफ एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर जब पोलन ग्रेन्स के जो एंथर के जो पोलन ग्रेन्स हैं दे विल ट्रांसफॉर्म टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, देन इट इज कॉल्ड द पोलिनेशन। इट इज कॉल्ड पोलिनेशन। देखो पोलिनेशन टू टाइप्स का होता है, क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द लीव्स। लीव्स से वाटर का लॉस होना क्या होता है, इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। देन स्मॉल प्लांट्स विद द फ्लेक्सिबल ग्रीन स्टेम्स। स्मॉल प्लांट्स दैट हैव द फ्लेक्सिबल ग्रीन स्टेम। फ्लेक्सिबल ग्रीन स्टेम किसका होता है, इट इज कॉल्ड हर्ब। इट इज कॉल्ड हर्ब्स। Okay, now the green pigment in the leaf responsible for the photosynthesis. photosynthesis के लिए green pigment कौन सा होता है, it is called chlorophyll. It is called chlorophyll. It's called chlorophyll. Okay, now question number 5. Question number 5. What is says? Answer the following question in brief. इन क्वेश्चंस का मुझे क्या करना है, ब्रीफ में आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट विल यू फाइंड द फॉलोइंग। कौन कौन सी चीज उसने दी, एक तो उसने दी नोड, लैमिना, नेक्स्ट वन इज ओवरी, पेटियोल, petiole, then filament. What we have to write? We have to write the part of plant in which these type of parts are found. First of all, node. Node and internodes are the parts of stem. That's why node is found in stem. Node किस में मिलेगा मुझे, stem में। Node is the part where any leaf is attached. Okay. Lamina. Lamina is the part of leaf. Okay, lamina is the part of leaf. Ovary is found in the flower. Ovary is found in the flower because ovary is the part of pistil, or pistil is the female reproductive part of any flower or a plant. ठीक है। Petiole. Petiole is what? Petiole कहाँ होगा, petiole कहाँ पर होगा, petiole होगा आपका लीफ में। पेटियल किस में होगा, लीफ में। फिलामेंट इज फाउंड इन द एंथर। फिलामेंट इन द फाउंड इन द फिलामेंट कहाँ होगा, हमको पता है फिलामेंट कहाँ पर होगा, पोलन ग्रेन्स और एंथर। ये पूरा आपका क्या है, आपका स्टेमन है। ये कहाँ पर होगा आपका फिलामेंट, फिलामेंट होगा आपका स्टेमन में। ठीक है, स्टेमन में होगा। और स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका पोलन बॉडी और एक होता है आपका फिलामेंट। इट इज द पोलन बॉडी एंड दिस वन इज फिलामेंट। तो फिलामेंट किसमें किसका पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज स्टेमन। ओके, नाउ नेम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। व्हाट वी हैव टू राइट, आई हैव टू राइट फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। किसी भी फ्लावर के अंदर फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मुझे निकालना है। इट इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
Male reproductive part is stamen, okay, and female reproductive part is pistil. Okay, don't be confused. Male reproductive part is stamen and female reproductive part is pistil. Okay, पता है आपको? Now give one example of each of the following. It is the question number B and C is give an example of each of the following. ये जो 5 चीजें मुझे दी है, fibrous roots, herbs, shrub, climber, creeper. It means I have to give the examples in which these are found. ये किस में होता है? वो एग्जाम्पल देने मुझे इनके एग्जाम्पल. फाइब्रस रूट्स किस में होती है? फाइब्रस रूट्स इज फाउंड इन द व्हीट एंड मेज. फाइब्रस रूट्स इज फाउंड इन व्हीट एंड मेज. हर्ब्स, कोरिएंडर. व्हाट इज कोरिएंडर एंड मिंट? बोथ आर coriander and mint. Then shrub is rose plant. climber में आप लोग एग्जांपल लिख दीजिए. pea plant, gourd, लौकी. creeper is watermelon and muskmelon you can write. ठीक है. These are the example of question number C. Then last one is differentiate between the followings. Differentiate between followings. What we have to write? We have to make the differences between the terms. डिफरेंस करना है मुझे किसमें? shrubs में और herbs में. First one is a herb and a shrub. First one is a herb and a shrub. Question number D. Herbs, small size plants, medium size plant. Herbs are smaller size plants while shrubs are medium size plants. Herbs have flexible stem while shrubs have hard and thick stem. Green stem, brown stem. Okay, these are the differences between the herbs and the shrub. ठीक है. Tap roots and fibrous roots. Note down this. Tap roots and fibrous roots. My second question is tap roots and fibrous roots. Tap roots and first of all इनका फंक्शन क्या है? They always anchors the plant into the soil. दोनों का ही फंक्शन क्या है? सोइल के अंदर प्लांट को एंकर करना, जकड़ के रखना. तो टैप रूट इज गॉट डिफरेंस क्या है? टैप रूट्स आर supported by lateral roots. Fibrous roots are not supported.
टैप रूट्स ऑलवेज गो टू द डेप्थ, गहराई तक जाती है ये। These do not go to the depth, ठीक है, ये डेप्थ में नहीं जाती है। लास्ट वन इज अ पिस्टल एंड द स्टेमन, अ पिस्टल एंड द स्टेमन, पिस्टल एंड द स्टेमन। ओके, नाउ पिस्टल इज व्हाट? Pistil, it is female reproductive part and it is male reproductive part. These have stigma, style and ovary, and these have filament and anther. Ovary have the ovule, anther have pollen grains. These are the differences between pistil and a stamen. आई बात समझ में? pistil and the stamen, spelling mistake कर रहे हैं लोग, it is S-T-A-M-E-N. Okay, these are the definitions or differences between the terms. Then second last question is, how is the transpiration useful to the plants? How is the transpiration useful for the plants? देखिए आप लोग, transpiration is what? The transpiration is the process of the loss of water from the leaves in the form of water vapors. Water vapors के फॉर्म में क्या करता है प्लांट, जो वाटर होता है उसका लॉस करता है इन द लीव्स, लीव्स के जो किनारे हैं, एजेस हैं, वहाँ से, या फिर उसके ऊपर स्टोमेटा होता है, उस स्टोमेटा के ऊपर से वो क्या करता है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में वाटर को लॉस करता है। तो व्हाट आर द व्हाई इट इज यूजफुल? आंसर लिखवा रहा हूँ, आप लोग राइट कर लेना। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस by which soluble waste plant body में सेकेंड आंसर इज व्हाट? एक तो ये है कि इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट का वो उसके अंदर निकल जाता है। दूसरा, occurs and water vapors condense cause a rain, रेन को कॉज करेंगे, ये बादलों में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा इन वाटर वेपर्स का, तो उससे क्या होगा,
उससे बादल बनेंगे और रेनिंग होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज पोलिनेशन? व्हाट इज पोलिनेशन? व्हाट इज पोलिनेशन? पोलिनेशन मैंने आपको पहले बताया था, द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। क्या बताया था मैंने आपको? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द प्लांट। व्हाट इज दिस? इट इज द स्टिग्मा। ये क्या है? आपका स्टिग्मा है। दिस इज pollen grain और pollen body. It is completely stamen, filament and the anther. Anther में क्या होता है? pollen grains. ये क्या है? आपकी pollen body है holding the pollen grains. किसको होल्ड कर रखा है इसने? pollen grains को। ये pollen grains जो है that will comes to the stigma. So this transfer is known as pollination. Okay, pollen grains are transferred to the stigma of the flower. This process is known as pollination. The transfer of pollen grains to the stigma of flower. Answer is what? Transfer of pollen grains to the stigma of the flower is called pollination. Is called pollination. First is self pollination. Self pollination and second was cross pollination. Second is cross pollination. Okay, answer in details. List any three important function in each of the stem, leaves and plants. बेटा एक चीज देखना कि डिटेल्स के जो आंसर्स है मैं मैक्सिमली क्यों नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज ऑल दीज आंसर्स आर कमिंग इन द नोट्स। जो भी आपके बुक है उसके अंदर ये सारे आंसर्स मिल जाते हैं और दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो। हमको पता है कि रूट स्टेम और लीव्स के फंक्शन कहाँ पर मिलेंगे? रूट स्टेम और स्टेम के अंदर ही मिलेंगे। ठीक है, तो वी डोंट हैव टू डिस्ट्रक्ट और कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि सर ने करवाए नहीं है। वाई डू रूट्स मॉडिफाई? मैंने अभी बताया था रूट्स कैन बी मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग द फूड, रूट्स कैन बी मॉडिफाइड फॉर द प्रोटेक्शन। ओके, root can be modified for the anchoring of the plant. Explain any four modification of root जो आपको दिए हुए हैं, roots के modification दिए हुए हैं। Explain the modification of stem for the following. Support के लिए stem क्या करता है भाई? Support के लिए stem क्या करता है? Explain any four modification, sorry, स्टेम फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, सपोर्ट के लिए स्टेम, आप देख लो स्टेम में क्या लिखा हुआ है। सपोर्ट के लिए स्टेम क्या करता है? देखो, टेंड्रिल्स बनाता है, टेंटेंगल्स बनाता है। सपोर्ट के लिए, क्लाइंबर्स के लिए क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये? इट मेक्स द टेंड्रिल्स स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर द क्लाइंबर्स विल हेल्प टू द प्लांट्स फॉर क्लाइंबिंग। क्लाइंबिंग में ये हेल्प करता है। दूसरा इसमें दिया है आपके फूड स्टोरेज, लाइक द पोटैटो, इट ऑल्सो हेल्प इन द फूड स्टोरेज। स्टेम जो होता है वो कभी कभी मॉडिफाइड होता है, किसके लिए? फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प करता है स्टेम? स्टेम प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प कर रहा है? प्रोटेक्शन में कैसे हेल्प करेगा? देखो, स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज बोगनवेलिया हैव थॉर्न्स और प्रोटेक्ट द प्लांट्स। उसके ऊपर क्या हो सकते हैं? कांटे पाए जा सकते हैं। दैट्स व्हाई वो हेल्प करेगा प्लांट की फॉर द प्रोटेक्शन। आई बात समझ में? नेक्स्ट, वाटर स्टोरेज। स्टेम्स क्या करते हैं? स्टेम्स जैसे कैक्टस होता है, कैक्टस का जो प्लांट्स का जो स्टेम होता है, दीज ऑलवेज हेल्प इन द रिड्यूसिंग ऑफ लॉस ऑफ वाटर। पानी को बाहर निकलने से या लॉस होने से रोकता है। नाउ
वाई डू लीव्स ऑफ सम प्लांट्स गेट मॉडिफाइड? लीव्स कैसे मॉडिफाइड होती है आपको पता है क्यों हो जाती है? लीव्स मॉडिफाइड होती है फॉर द प्रोटेक्शन। अभी मैंने कैक्टस में देखा कि लीव्स ऑफ द कैक्टस प्लांट्स आर मॉडिफाइड thorns of the cactus plant is modified leaves। तो लीव्स किसके लिए? रिड्यूसिंग ऑफ वाटर के लिए क्या होगा? हेल्पफुल होगा। स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज वेनेशन? मैंने बता दिया था अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इन द लीफ इज नोन एज वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इनटू द वेनेशन। वेनेशन इज अ टाइप ऑफ टू दैट इज पैरेलल वेनेशन एंड reticulate venation। Reticulate venation in the found in the people plant or venation parallel is found in wheat, parallel is found in parallel is found in the grass also। now सब कुछ आपको बताया हुआ है। दो द लेबल डायग्राम ऑफ फ्लोर, जो लेबल डायग्राम आपको नीचे दिया हुआ है वही आपको डायग्राम बनाना है। एक्सप्लेन मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। What changes occurs in the flower after pollination? After pollination क्या changes होंगे? After pollination changes क्या होंगे? The ovary will completely ripen। ovary का जो pollination हुआ, pollination के बाद में क्या होगा? one pollen tube will develops over the surface, inside the ovary। इसके जो आपका पिस्टिल है, मैंने आपको बताया था पोलन ग्रेन यहाँ पर जब आएगा तो इट विल डेवलप्स अ पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन के थ्रू क्या होगा? पोलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा? यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर हमारे पास क्या है? ओव्यूल्स, एग्स हैं, फीमेल गैमेट्स हैं। ये ओव्यूल, ये जो आपका पोलन है वो पोलन यहाँ तक आएगा और यहाँ पोलन जो होगा एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। इट विल फॉर्म द जाइगोट। और ये जाइगोट जब क्या होगा? डिवाइड होगा अपनी सेल्स में, तो इट विल फॉर्म द सीड। क्या बनाएगा? ये सीड बनाएगा। और बाहर वाले जो पार्ट्स हैं, ऑल द पार्ट्स ऑफ द लाइक एंथर, पेटल्स, सेपल्स, ये सारे जो पार्ट्स होंगे, ये सारे पार्ट्स क्या होंगे? झड़ जाएंगे या मुरझा जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है। तो ये जो ओवरी है, ये ओवरी राइपन करेगी एंड द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट टेक्स प्लेस। ठीक है। आई बात समझ में? लेबल पार्ट ऑफ द प्लांट फ्लावर, ये फ्लावर दिया है, इसका पार्ट का कहना है व्हाट आर द मेल एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज यू डिस्कस्ड। विच पार्ट टेक्स पार्ट इन द पॉलिनेशन? कौन सा पार्ट पॉलिनेशन में हेल्प करता है? कौन सा पार्ट करता है पॉलिनेशन में? स्टिग्मा पार्ट काम करता है और एंथर काम करता है। एंथर एंड स्टिग्मा ये पॉलिनेशन में भाग लेते हैं। ठीक है। These questions don't have to do। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी और इन एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे। Whenever you have any query then you can ask to me। Okay, thank you, have a nice day।